Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I'm your computer teacher. آج کا لیکچر ہمارا مائکروسافٹ ایکسل کے اوپر ہے. جیسا کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل کا ایک شارٹ کٹ موجود ہے. اس شارٹ کٹ کو ہم شارٹ کٹ کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں. جیسے ہی مائکروسافٹ ایکسل کا سافٹ ویئر آپ کے سامنے اوپن ہوا ہے, اب آپ سے یہ بہت ساری ایکسل کی شیٹس اور ورک بک کے حوالے سے پوچھ رہا ہے کہ کس طرح کا کی فائل آپ بنانا چاہتے ہیں. یہ ایک سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بلینک ورک شیٹ. اسی طرح سے باقی جو ہے آپ کے پاس فارمیٹڈ ورک شیٹس موجود ہیں, لیکن ہم ایز اے نیو ہیں, اس وجہ سے ہم مائکروسافٹ ایکسل کی جو ہے بلینک ورک بک کو اوپن کریں گے. اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے مائکروسافٹ ایکسل کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اوپن ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل جو ہے فرنٹ ہے, جو فیس ہے سافٹ ویئر کا, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے ہم بالکل ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بک 1. جو فائل اس مائکروسافٹ ایکسل کے اندر اوپن ہے اسے ہم بک 1 کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد اسی سافٹ ویئر کا نام لکھا ہوا ہے جسے ایکسل کہتے ہیں. اب سب سے پہلے تھوڑے سے اس کے فیچرز کے حوالے سے بات کر لیں کہ مائکروسافٹ ایکسل ہم کیوں یوز کرتے ہیں. مائکروسافٹ ایکسل ایسا کیسا سافٹ ویئر ہے, کن جگہوں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا کام جو کہ ہماری جس کام کے اندر ہمیں کالمز اور روز کی ضرورت پڑے, اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں مائکروسافٹ ایکسل ہی ایزی رہتا ہے. جیسے کہ آفیسز کے اندر جو ہے لسٹیں بنتی ہیں, اور وہ لسٹ بنانے کے لیے آپ مائکروسافٹ ایکسل کو یوز کریں گے. جیسے سیلری لسٹ بنتی ہے, سیلری ووچر بنتے ہیں, اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی لسٹ بنتی ہیں, یا پھر اسی طرح سے بہت سارے اور ایڈوانس کام جو ہوتے ہیں کہ ان ڈیٹا کو, جو ڈیٹا آپ ایکسل کے اندر کلیکٹ کرتے ہیں اس کے تھرو آپ اس کے اوپر چارٹ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے فیچرز کے لیے رپورٹنگ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے اس ڈیٹا سے آپ آگے کیا پلاننگ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ ہیں, جو آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. یہ ایسے کام جن کے اندر آپ کی روز اینڈ کالمز کو یوز کیا جائے گا. اس طرح کے سارے کام آپ مائکروسافٹ ایکسل کے اوپر کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ٹاپ جو ہے مائکروسافٹ ایکسل, یہ کوئک ٹول بار ہے ہمارے پاس موجود. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹیبس موجود ہیں, فائل ٹیب, ہوم ٹیب, اسی طرح سے ہمارے پاس انسرٹ ٹیب ہے, پیج لے آؤٹ ہے. تو جیسے جیسے آپ کے پاس یہ ٹیبس ہیں, جیسے ہی آپ کسی ٹیب کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کی ریبن آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے, اور اس ریبن کے اندر بہت سارے آپشنز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ان ٹیبس کے اندر جو یہ ریبن اوپن ہے, جیسے کہ ہوم کے اندر یہ ٹیب ریبن اوپن ہوئی ہے, اس ریبن جو ہے وہ ریبن ڈیوائیڈڈ ہے گروپس کے اندر, اور بہت سارے گروپس آپ کو ملیں گے. یہ جس طرح سے ہم مائکروسافٹ ورڈ کو پڑھ چکے تھے اس کے اندر ہمیں گروپس ملے تھے. تو سب سے پہلے یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایک گروپ بنا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے جسے ہم کلپ بورڈ کہہ رہے ہیں. اس روز اس لائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گروپ الگ ہے, اس لائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروپ الگ ہے ہمارا. اسی طرح سے یہ فونٹ کا گروپ ہے, الائنمنٹ کا گروپ ہے, نمبر کا, اسی طرح سے آن ورڈز, بہت سارے اور بھی گروپس آپ کے پاس موجود ہیں. اس سے نیچے اگر ہم آ جاتے ہیں تو اگر دیکھیں کہ ہمارے پاس A1 لکھا ہوا ہے, A1 جو ہے یہ کالم کی پوزیشن کو شو کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ بار نظر آ رہی ہے, فارمولا بار جسے ہم بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم فارمولا کو اگر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹیکسٹ ہم انٹر کریں گے وہ بھی ہمیں یہاں پہ اس فارمولا بار کے اندر نظر آ جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو فائل اس کے اندر اوپن ہے اسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بک 1. اس بک 1 کے اندر ایک شیٹ اوپن ہے, یعنی ایک پیج اوپن ہے آپ کے پاس جس کا نام ہے شیٹ 1. تو یہ کمپیوٹر بائی ڈیفالٹ جو ہے آپ کے پاس شیٹ 1 کے نام سے ایک شیٹ اوپن کر دیتا ہے. باقی جتنی شیٹس اگر آپ نے انسرٹ کرنی ہے تو یہ پلس کی سائن آپ کے پاس موجود ہے, یہاں سے آپ نیو شیٹ جو ہے کلک کر کے انسرٹ کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال ہمیں شیٹ نمبر 1 کے اوپر ہی کام کرتے ہیں. تو شیٹ 1 کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیٹ 1 کے اندر ہمارے پاس کس طرح سے فارمیشن ہے اس شیٹ 1 کی, اسے تھوڑی سی اسٹڈی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ
ए बी सी डी इस तरह से लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, कॉलम्स हैं। ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, तो ये कॉलम्स हैं हमारे पास मौजूद। इसी तरह से ऑनवर्ड्स बहुत सारे कॉलम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर इस साइड पे आ जाएं तो ये आपके 1 2 3 ये आपके पास रोज मौजूद हैं, रो 1 है, रो 3 है, रो 4 है। इसी तरह से आप जैसे जैसे आप इनके ऊपर रोज के ऊपर क्लिक करते रहते हैं, ये पूरी की पूरी रोज यहाँ से सिलेक्ट भी की जा सकती हैं। तो जो हमारे पास जो शीट मौजूद है, इस शीट के अंदर हमारे पास रोज और कॉलम्स मौजूद हैं, यानी ये एक टेबल की शक्ल में हमारे पास ये शीट मौजूद है। इस टेबल में जो है आप जब भी टेबल की डेफिनेशन को देखेंगे तो टेबल क्या है, टेबल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या फिर आप ये कहें कि टेबल जो है वो रोज और कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे रोज भी मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे कॉलम भी मौजूद है। अब आ जाते हैं कि ये जो रोज एंड कॉलम्स हैं, जब आप एक कॉलम जो है एक रो की किसी एक हिस्से को काटता है तो वो उसे कहते हैं सेल। तो ये जो अभी सिलेक्टेड एरिया है दैट इज कॉल्ड अ सेल। इसी तरह से कहीं और सिलेक्शन पे आप क्लिक करें तो फिर देखें वो भी एक सेल है। तो ये पूरी की पूरी जो शीट है हमारी ये सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब जहां पे भी आप क्लिक करते हैं उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन सा सेल का नंबर है, वो आपको दिखाया जाता है यहाँ पे। इस बॉक्स के अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये आपका सी का सेल है और आप रो नंबर 6 पे खड़े हैं, यानी ये जो लोकेशन है इट इज कॉल्ड C6। तो इसी तरह से हर लोकेशन की अपनी अपनी एक पहचान है। आप जहां जहां भी क्लिक करते रहेंगे आप यहाँ पे देखते रहेंगे कि आपकी लोकेशंस जो है वो चेंज होती रहेंगी। अब आ जाते हैं कि ऐसा कैसा काम होगा कि जो हम करना चाहते हैं। आज हम स्टूडेंट्स की एक लिस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं कि उसको किस तरह से बनाना चाहिए। हमें एक लिस्ट के लिए के जो कॉलम्स हैं अगर उनको हम थोड़ी सी रिव्यू कर लें, जैसे कि हम सीरियल नंबर चाहिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट चाहिए, फादर नेम चाहिए उसी स्टूडेंट का, इसी तरह से आपके पास क्लास, और इसके साथ साथ आपको GR नंबर। तो ये GR नंबर की एक लिस्ट हम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिख लेते हैं कि GR नंबर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसे एंटर कर देते हैं और इसके बाद जो है हम हेडिंग ले लेते हैं कि अपनी टेबल में हमारी हेडिंग क्या क्या होंगी। हम सबसे पहले सीरियल नंबर SR नंबर, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे GR नंबर, और उसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद ये जो एक सेल से दूसरे सेल में जिस तरह से हम शिफ्ट हो रहे हैं, यह आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब की दी हुई है। इस टैब की को जैसे ही आप एक कॉलम में लिखने के बाद आप जैसे ही पुश करेंगे ये दूसरे सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो दूसरा सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फादर नेम, इसी तरह से हम इसकी क्लास लिख लेते हैं। अब देखें हर कॉलम के अंदर हमने क्या लिखा है, एक में सीरियल नंबर, दूसरे में GR, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद हमने लिखा है क्लास। अब अगर हम इस हेडिंग्स के ऊपर अगर नजर रखें और देखें कि हमें जो है एक सेल जो है ये इतना छोटा सेल है कि इसके अंदर पूरी जो हमने हेडिंग दी हुई है वो नजर नहीं आ रही है, जबकि हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो वही जो फार्मूला बार है ऊपर उसके अंदर हमें तो पूरा टेक्स्ट नजर आ रहा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स पूरा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह से फादर नेम है, यहाँ पे पूरा फादर नेम तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन फार्मूला बार के अंदर ये फादर नेम आपको शो किया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा इस सेल्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले तो उस सेल को जिसको आप बड़ा करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर आप जो है अपनी सिलेक्शन करें और उसके बाद आप ऊपर चले जाएं। यहाँ पे देखें अगर आपके पास एक मखसूस पोजीशन जो है इसकी आपकी बॉक्स की नजर आ रही है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें और उसके बाद ड्रैग कर दें इसको लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे क्या आप देखेंगे कि अब आपके जो है पूरे का पूरा टेक्स्ट नजर आ रहा है। इसी तरह से आप इसको भी सिलेक्ट कर लें और इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लें कॉलम को। इसी तरह से क्लास के कॉलम को बड़ा कर लेते हैं, नेम का कॉलम और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से GR कॉलम और सीरियल का कॉलम यहाँ पे हमने अभी सेटिंग कर ली है। इस सेटिंग के बाद हम इसकी और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे हम इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद जो है हम लेफ्ट माउस की को पुश करके रखेंगे और आप माउस को मूव करते हुए ड्रैग कर लेंगे तो ये जितने भी आपने कॉलम्स हैं आपके वो सबके सब सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं ऊपर
ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, फॉन्ट्स के हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर लिया हमने। इसके बाद इसके जो है फॉन्ट साइज को भी बड़ा कर लेते हैं, तो ये फॉन्ट साइज आपकी बड़ी हो गई है। इसी तरह से हम जो है और भी फॉर्मेटिंग टाइम टू टाइम जो है अप्लाई करते रहेंगे। अब आ जाते हैं इस पे कि थोड़ा सा शीट के हवाले से मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं। ये शीट आपको अभी जो नजर आ रही है जिसमें रोज और कॉलम्स डिवाइडेड हैं, ये लाइनें नजर आ रही हैं, लेकिन ये लाइनें सिर्फ आपके यहाँ पे शीट के ऊपर काम करने के लिए हैं। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये लाइंस वहां पे आपको उस पेपर के ऊपर नजर नहीं आएंगी। इस वजह से हम इसे जो है एक प्रॉपर टेबल का शेप देना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर जो है यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन मौजूद है फॉन्ट के अंदर, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें बॉर्डर्स मुख्तलिफ टाइप के आपको दिए हुए हैं कि आप लेफ्ट साइड ले सकते हैं, बॉर्डर जो है टॉप बॉर्डर ले सकते हैं, बॉटम ले सकते हैं, लेफ्ट राइट सब आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह से अगर आप कहीं और क्लिक करें, देखें अब इनकी लाइंस जो है वो थोड़ी सी गहरी हो गई हैं। थोड़ी सी डेटा इसके अंदर एंटर कर लेते हैं। सीरियल नंबर के अंदर हम फर्स्ट 1 लिख लेते हैं, इसके बाद हम एंटर करते हैं सेकंड में 2, इसके बाद कॉलम के अंदर हम 3 लिख लेते हैं। जीआर नंबर भी कुछ जो है हम लिख लेते हैं, और इसी तरह से जीआर नंबर, ये तीसरा जीआर भी जो है हम एंटर कर लेते हैं। तो 3 जीआर और इसी तरह से 3 सीरियल नंबर हम एंटर कर चुके हैं। अब हम स्टूडेंट का नाम लिखना चाहते हैं, ये लिख लेते हैं एम वसीम, मोहम्मद वसीम। इसका फादर नेम भी लिखना चाहते हैं, लिख लेते हैं सलीम, और क्लास इनकी लिखना चाहते हैं 9th। इसी तरह से जैसे ही एंटर करेंगे वो सेल जहाँ पे आप की जो है नाम लिखा था, खाली सेल था, वहां पे आपका जो है अब सिलेक्शन हो चुकी है। यहाँ पे एक और नाम लिख लेते हैं, मुबीन अहमद अरसलान। इसी तरह से हम यहाँ भी 9th लिख लेते हैं। इसी तरह से हम आ जाते हैं एम आसिफ, और उसके बाद यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेते हैं नसीम। इसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं 9th क्लास। ठीक है, एक टेबल हमारी प्रॉपर जो है बन चुकी है, लेकिन सिलेक्शन अगर देखें हमारी टेबल की, सिर्फ ऊपर हेडिंग से ऊपर जो है एक टेबल की रोज और बॉर्डर्स लाइंस जो है वो नजर आ रही है, लेकिन बाकी जगहों पे नजर नहीं आ रही। तो हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये बॉर्डर सभी टेबल की जगह पे अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखें पूरी की पूरी टेबल के ऊपर जो है हमारे बॉर्डर्स आ चुके हैं। इसी तरह से अब सीरियल नंबर जो है ये राइट साइड पे है, लेकिन हम इसे सेंटर पे रखना चाहते हैं, तो इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से हम सेंटर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें कि हमारे नंबर जो है सेंटर में आ चुके हैं। इसी तरह से जीआर भी इसी तरह से अगर करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लें और उसे भी सेंटर पे कर दें। तो ये जीआर नंबर अब हमारी एक अच्छे लुक वाली एक टेबल बन चुकी है। अब हम थोड़ी सी इसकी जो ऊपर हमने हेडिंग दी थी, इस हेडिंग की जो है वो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, और इसे फॉर्मेट देना चाहते हैं। तो हम इस कॉलम से लेके उस कॉलम तक जहां पे हमारी टेबल का लास्ट कॉलम है वहां तक हम इसे सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी जो है एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास मर्ज का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से अगर देखें अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज के ऑप्शंस को हम यूज करेंगे और यहाँ पे इसे मर्ज कर लेंगे। तो जितने भी सेल थे वो सब के सब जो है एक दूसरे में मर्ज हो गए। ये एक सेल बन चुका है अब। तो ये हेडिंग आपके पास आ चुकी है। अब इस हेडिंग के लिए हम इसकी फॉन्ट साइज को भी बढ़ा देते हैं, इसे बोल्ड भी कर लेते हैं। अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब कहीं और आप ऐसी शीट के अंदर क्लिक कर लें। अब देखें प्रॉपर आपको जो है किस तरह से ये फॉर्मेटिंग नजर आ रही है। तो यहाँ हमने आज सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे हम अकाउंट्स या फिर ऐसा काम जिनमें लिस्ट आ जाती हैं, टेबल्स बनती हैं, इस तरह के सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने आज एक छोटी सी टेबल जो है बेसिक, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है, पहली क्लास है हमारी, तो इसके अंदर हमने आज एक
بیسک ٹیبل جو ہے بنانا سیکھی ہے. انشاءاللہ آگے جو ہے اس میں سے جو بھی ایڈوانس آپشنس ہوں گے ان کو استعمال کرتے رہیں گے. میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ان لیکچرز کے ساتھ اس کلاس کے ساتھ جڑے رہیں کہ ہم جو ہے بیسک سے لے کے اور ایڈوانس لیول تک جو ہے سیکھتے جائیں. یہاں پہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ڈی جی سندھ آپ کا اپنا چینل ہے, اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس کے بیل آئیکن کو دبائیں. جو نئی سے نئی ویڈیو ہو وہ آپ لوگوں کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں. تب اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.